اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول گر جاتا ہے۔ یہ فانی تخم سے پیدا شدہ لوگ ہیں، اور ہم بھی نیچرل تخم سے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے ہم گھاس کی طرح سوکھ جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، لیکن ہم ایک اور تخم سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ تخم کیسا ہے؟ غیر فانی۔ اس کی بابت لکھا ہے لیکن خداوند کا کلام اب تک رہے گا، جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ کلام قائم رہے گا، کلام کبھی نہیں مرے گا۔ اس لیے وہ مخلوق، وہ زندگی، وہ شخص جو مجھ میں غیر فانی تخم سے پیدا ہو چکا ہے، وہ بھی کلام کی طرح ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نیچرل برتھ اور اسپرچول برتھ، دو برتھیں، رائٹ؟ آگے رسول کیا کہتا ہے؟ آگے رسول جوان ہونے کی بات کرتا ہے۔ پس ہر طرح کی بدخواہی ہون کرو کی تسی، پیدائش ہو گئی، بچہ بڑھتا ہے، تم بھی بڑھو۔ کیسے بڑھو گے؟ اس لیے کہ تم پرانی زندگی سے بھی آئے ہو، جس میں بدخواہی، برا چاہنا، دوسرے کا برا چاہنا۔ بس تم کیا کرو؟ ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے کیا کرو؟ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے نجات میں بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، آگے لکھا ہوا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ تو نیو مولود تو ہو گئے، رائٹ؟ اب دو کام، ڈبل ٹریک، جو ریلوے لائن ڈبل ٹریک۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ پرانی پیدائش، نیچرل پیدائش میں جتنی باتیں گندی، بری، سڑی ہوئی ہمارے اندر موجود ہیں، انہیں دور کرو، انہیں نکالتے جاؤ۔ اس میں رسول نے نشاندہی کی چند باتوں کی: بدخواہی، سارا فریب، ہر طرح کا حسد، ہر طرح کی بدگوئی، ہر طرح کا فریب۔ اس کو دور کرو، اس کو نکالو۔ اگر نہیں نکالو گے تم شفا نہیں پاؤ گے۔ اس کو نکالتے جاؤ اور کلام کو کھاتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور مشتاق رہو، اور نجات جو بہت بڑی ہے مسیح میں، اس کو جلال سمیت، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے نجات کو جلال سمیت حاصل کرتے جاؤ۔ یہ ہے شاگردیت کی طرف بالغ ہونے کی باتیں، کہ صرف ایماندار نہ رہو، صرف بچے نہ رہو، صرف پیدائش پر خوش نہ رہو، بلکہ روحانی طور پر بالغ شخص بننے کے لیے تم بڑھتے جاؤ۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ روحانی بچے۔ انہوں نے کہا مچھا داڑھی آیا ہو یہاں مجھے۔ اسی طرح بہنیں ہیں، چاہے وہ بالغ ہوں نیچرل، روح میں بچے کون ہیں؟ پولس ایک بات کا ذکر کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب میں، آؤ دیکھیں پھر ہم واپس آئیں گے۔ ہیلیلویا، آمین۔ کرنٹ ہے؟ اوکے اوکے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب
यहां लिखा है, ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका, ये रसूल कह रहे हैं, जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। तुम जवान नहीं हो रहे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी यानी खाने की बर्दाश्त नहीं थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। गौर करो इस बात पर भी, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? तो मसीह में बच्चे कौन हैं? यस, ये लोग बच्चे हैं जिनमें हसद है, झगड़े हैं, मोहब्बत नहीं है। पौलुस रसूल हैरान है कि तुम अभी तक मसीह में बच्चे हो। इसलिए मैं कलाम ना कर सका तुम्हारे साथ। तो मेरे अजीजों, हमें मसीह में आगे बढ़ने की जरूरत है। ईमानदारों से हमें बलूगत की तरफ जाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ओकियो रुले खुले, अधे या रूहानी, हाँ अधे रूहानी अधे जिस्मानी, क्लियर नहीं होंगे। हमारे पास मुकाशफात नहीं हो। इनके पास बहुत कुछ था कुरिन्थुस की कलीसिया के, हमारे पास भी नहीं। अरे ये रूह में जुबानें बोलते थे, है या नहीं? इनमें पाक रूह की नेमतें भी काम कर रही थी। ये निजात याफ्ता लोग थे। रसूल ने इस कलीसिया की तामीर की थी, लेकिन वही कहता है, क्या तुम अभी तक जिस्मानी नहीं हुए? इसलिए कि तुम मसीह में बच्चे हो, तुम में हसद है, तफरके हैं, झगड़ा है, पार्टीबाजी है, बदकोई करते हो, हसद करते हो। रूह की नेमतें हैं मगर रूह के फल नहीं है। तो क्या तुम बच्चे ना हो? तो ईमानदार से आगे बढ़ने के लिए हमें बलूगत की जरूरत है। और कई ईमानदार हैं, वो सारी उम्र ईमानदारी से शागिर्दियत की तरफ नहीं आते, बालिग नहीं बनते। वो बच्चा क्या होता है? किसी बच्चे को मिल जाए, आपको पता चल जाएगा उसकी दुनिया अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके खिलौने, उसका लिबास, उसके कपड़े, उसका खाना। अगर किसी ने उसके खिलौने के साथ खेला, भावें 70 खिलौने पे हों, उन्हें कहना मेरे नाल खेलना। याद आ गई जगह, बच्चा है ना। हालांकि खिलौने सारे पड़े हैं, लेकिन जो किसी ने ले लिया, मैंने इसी के, मैं ये वो कौन, ये मेरी चीज, उसकी सारी जिंदगी मैं के गिर्द घूमती है और ये उसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर सारी उम्र ही मैं करता रहे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। यही हाल ईमानदारों का है। अगर वो सारी उम्र ही सेल्फिश रहे और मैं के गिर्द ही रहे और कभी बड़ा ना हो, कभी बालिग बातें ना करे, कभी आसमान की बादशाही की बातें ना करे, कभी बिशारत की बातें ना करे, कभी शफात की, कभी रूहानी जंग की, कभी तरक्की की, कभी तामीर की, कभी मिशंस की, वो बातें ही नहीं करता, वो मैं की बातें करता है। मेरा टाइटल, मेरी जगह, मेरा नाम, मेरी मशहूरी, मेरी शोहरत, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, सारी उम्र मेरी पहचान, मेरा बोलबाला, मेरा नाम, इसी हालत में रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो शागिर्द नहीं बना, वो मैच्योर नहीं हुआ। वो कलीसिया में तो है, वो भीड़ का हिस्सा तो है,
लेकिन वो भीड़ से अलग होकर मखसूस नहीं हुआ, पहचान नहीं बनी, पैरोकार नहीं बना, बालिग नहीं बना, शागिर्द नहीं बना। बड़े क्या होते हैं? बड़े देने वाले होते हैं, केयर करने वाले होते हैं, वो बच्चे नहीं होते हैं। तो मसीह ने फरमाया तुम सब कौमों में जाकर क्या करो? जोर से बोलो, शागिर्द बनाओ। दिस इज द मेन थिंग। और मैं इकरार करता हूँ हमने अपने चर्चेस में ये काम नहीं किया है। हमने बिशारत दी है, हमने लोगों को मसीह के लिए जीता है, हमने बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन उनकी केयर, उनके लिए बाइबल स्टडी, उनके साथ वक्त गुजारना, उन्हें जो जख्म पहुंच चुके हैं पुरानी जिंदगी में वो रद्द किए गए हैं, उन्होंने आंसू बहाए हैं, उन्हें फ्रेब मिले हैं और उन्होंने बुत परस्ती की है, शायद वो जादूगरी में रहे हैं, उनका बातन आलूदा है, जख्मी है, वो अगर शिफा नहीं पाएंगे, शायद वो अकल्ट में रहे, शायद वो पोर्नोग्राफी में रहे, शायद वो फोर्स निगारी में रहे, शायद वो बदकारी में जिंदगी गुजारते रहे, एडिक्शंस का शिकार रहे हैं। ये सारी हिस्ट्री उनके साथ आती है और जब तक इन जख्मों से उनको शिफा नहीं मिलेगी, ये दूर नहीं होंगे, सेहत नहीं आएगी, वो मसीह में बच्चे रहेंगे, हर्ट रहेंगे, जख्मी रहेंगे और जख्मी करते रहेंगे और हमारी कलीसियाओं को दुख पहुंचता रहेगा, इसलिए कि उनमें खुदा की बादशाही का विजन नहीं होता है। एक जगह पर तो लिखा हुआ है खुदा ने रसूल और नबी और मुबश्शिर और चरवाहे और उस्ताद ही इस काम के लिए दिए हैं कि ईमानदार बच्चे ना रहें बल्कि मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाए। मिनिस्ट्रीज का मकसद ही यही है, खादमों का मकसद ही यही है कि ईमानदार शागिर्द में बदल जाए। आइए देखें इफिसियों का खत उसका 4था बाब और फिर हम वापस आएंगे। चौथा बाब उसकी 11वीं आयत से क्या लिखा है जी? मिल गया हवाला सबको? ठीक है। उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया ताकि, क्यों जी? यही लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। यहां पर जो लफ्ज कामिल है, ग्रीक वर्ड काटेर्गिस्मोन, इसका मतलब है टू मेंड, मरम्मत करना, जोड़ना, परफेक्ट बनाना, हील करना, हड्डी जो टूट चुकी है उसको जोड़ देना, ये मतलब है कामिल का। खादमों का मकसद क्या है, क्यों दिए गए हैं? ताकि मुकद्दस लोग मेंड हो जाएं, जहां से टूटे हुए हैं वहां से जुड़ जाएं, उनको शिफा मिल जाए और वो शादमान हो जाएं और तरक्की करें और आगे बढ़ें। हमने ये काम नहीं किया है, हमने काउंसलिंग नहीं की, हमने वक्त नहीं गुजारा, हमने एक एक नामलूद ईमानदार की हिस्ट्री नहीं सुनी, इसलिए शागिर्द पैदा होने में दिक्कत हो रही है। खादिमों का मकसद क्या है? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और फिर आप भी खिदमत भी करेंगे, शागिर्द बन गए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब
खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में बेटे की पहचान, बेटे का ईमान तरक्की करके हम सब के सब एक ना हो जाए, सारी बॉडी, सारी कलीसिया शागिर्दों में बदल जाए, तो ऐसी कलीसिया को पास्टर सजाद दुनिया की कोई ताकत तबाह नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। और फिर लिखा है एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने। कामिल लफ्ज कितनी बारी आया एहों तक? 2 बारी। और पहला कामिल ग्रीक जुबान में फर्क लफ्ज है, वो काटेगेस्मोन है। यहां पर जो कामिल आया है इसके लिए लफ्ज टेलोस है, इसका मतलब है हदफ, मंजिल, निशान, जो काम पूरा करना है। अगर हील हो जाएंगे, मेंड हो जाएंगे, अंदर से मुरम्मत हो जाएंगे, शिफा पा जाएंगे, तो ये मसीह के ईमान में और पहचान में तरक्की करेंगे, कलीसिया बालिग हो जाएगी, खिदमत गुजारी का काम होगा और ये अपने हदफ को ये पूरा करेंगे, ये मिशन वर्क करेंगे, ये कामिल हो जाएंगे। ये कामिल लफ्ज फर्क है। हमने सिर्फ उर्दू जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाए। मसीह का कद बहुत बड़ा कद है, ये जिस्मानी कद नहीं है, ये उसका रूहानी कद है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, इसको पहचानो, ये मसीह के कद का हिस्सा है। उसमें जलाल, उसमें पाकीज़गी, उसमें इख्तियार, उसमें आंसू, उसमें रोशनी, ये मसीह के कद की बातें हैं। तुम्हें शिफा मिले, तुम तरक्की करो, तुम खिदमत गुजारी का काम करो, अपने हदफ को पूरा करो, ताकि मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाओ। और आगे रसूल लिखता है, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे। ये बात हम कर रहे हैं, राइट? याद आ गया? ताकि हम बच्चे ना रहे और आदमियों की बाजी करी और मक्कारी के सबब से दुनिया में भी लोग मौजूद हैं, फिर वो हमें धोखा नहीं दे सकेंगे, मक्कारी नहीं कर सकेंगे। उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के चौके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहां तक हमने बात क्या की है? मसीह का हुक्म क्या है? इरशाद आज़म क्या है? जोर से बोलो, जाकर सब कामों को यानी सब ग्रुपों को, है मुझे अब काश मुझे सारे ग्रुप याद होते यहाँ पर। एक तो गलती है, शिना है, जी बोलिए सर, शिना है, ब्रोशस्की है, ख्वार है, ये सारे कौमें हैं, ये एथनिक ग्रुप्स हैं। जाओ, क्या करो, निशाना क्या है? इनको मसीह के लिए जीतो, ये खुदा की बादशाही में पैदा हो और ये शागिर्द बन जाए, ये मसीह के पैरोकार बन जाए। तो तुमने इरशाद आज़म पूरा कर लिया है। अब हमने देखा कि ये काम कैसे होगा। पहले हमें शागिर्द बनने की जरूरत है। मुसीबत ये पड़ी हुई है कि जो शागिर्द बनाने वाले हैं वो खुद शागिर्द नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज है। जिथे दा लगा जिस्मानी काम कर लिया, जिथे दा लगा रूहानी कर लिया, वो खुद शागिर्द नहीं है। इसलिए ये काम दरमियान में अटका हुआ है।
तेजी के साथ बढ़ नहीं रहा है। तो पहली बात हमने देखी, ईमानदार शागिर्द कब बनता है? जब वो मसीह में बालिग हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं, हमने बात देखी, यूहन्ना की इंजील देखिए, अब 15 बाब उसकी 8 आयत। और शागिर्द कैसा होता है, वो नौमौलूदगी से कैसे निकलता है? यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत। क्या लिखा है जी यहां पर? कोई खड़ा होकर जरा पढ़े और हम सब सुने। जी कौन पढ़ेगा? जी। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। हाँ, फिर पढ़े, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि हाँ। तुम बहुत सा फल लाओ, और जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। कब शागिर्द ठहरोगे? जब फल लाएंगे। बहुत सा। बैठ जाइए। इससे क्या होगा? बाप का जलाल जाहिर होगा। कब? जब तुम बहुत सा फल लाओगे। इससे मेरे बाप का जलाल होगा और तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो शागिर्द कौन है? बहुत सा फल लाने वाला। फल